پاشکا کا تیسرا اتوار۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ برکتیں اور فضائل اور رحمتیں ہیں۔ خدا رزق پہ برکت دینے والا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں پطرس رسول سے 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور وہ 3 سوالات کون سے ہیں آج کی انجیل مقدس میں جانیں گے۔ آج کے دن جو ہے یوحنا رسول جو ہے وہ یسوع کو پہچانتا ہے۔ 3 بار سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند جو ہے وہ پطرس رسول کو اپنا جانشین ہونے کے لیے چنتا ہے، اسے ذمہ داری دیتا ہے، کلیسیا کی ذمہ داری۔ آج کی انجیل مقدس میں ہی مسیح خداوند جب رسولوں کو حکم دیتا ہے، کلام کا حکم دیتا ہے، کلیسیا کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہ کلیسیا جو ہے یہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہے جس کے تحت ہم آج مسیحی ہوتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ بس ہم جانتے ہیں کہ آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند جو ہے شاگردوں پہ پھر سے ظاہر ہوتا ہے۔ زندہ یسوع ان کے سامنے آتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے، اور سوال کیا ہے کہ نوجوانوں کچھ کھانے کو ہے؟ کیونکہ وہ ساری رات محنت کر چکے تھے اور ان کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، ایک بھی مچھلی نہ پکڑی تھی۔ لیکن یسوع جب ان سے سوال کرتا ہے کہ نوجوانوں کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس یسوع نے کہا کہ جال کو دہنی طرف ڈالو، اور جب انہوں نے جال کو دہنی طرف ڈالا تو مچھلیوں کا بڑا گول جو ہے انہیں حاصل ہوا۔ 153 مچھلیاں حاصل ہوئیں، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ جیسے کہ پرانے عہد نامے میں سلیمان بادشاہ نے ہیکل بنوائی اور اس نے 1,53,000 مزدور لگائے، اور ان مزدوروں نے اس ہیکل کی تعمیر کی۔ یہاں پہ آج کی انجیل مقدس میں جب 153 مچھلیوں کا گول پکڑا جاتا ہے تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ شاگرد جو ہے یہ نئی ہیکل کی تعمیر کریں گے، اور مچھلیوں کی بہتات جو کہ کلیسیا سے مراد ہے کہ یہ مچھلیاں جو ہیں یہ بہتات میں ہیں، بہتات میں ہیں۔ بس رسول جو ہیں وہ نئی ہیکل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور جب یہ سارا ماجرا ہوتا ہے تو یوحنا رسول جو ہے وہ یسوع کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو خداوند ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ خداوند ہے تو ایک خوبصورت بات جو ہے جو تھامس ایکوائنس فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو جاننا ہی خدا سے محبت ہے۔ یوحنا رسول وہ اپنی محبت جو وہ یسوع کے لیے رکھتا تھا اس کو پہچاننے سے، اس کا اقرار کرنے سے، ایمان لانے سے ہمیشہ ہی کرتا رہا ہے، اور 3 بار جو ہے وہ یسوع جو ہے وہ سوالات پوچھتا ہے، اور 3 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے۔ 7 کا عدد بھی کاملیت کا ہے، 12 کا عدد بھی کاملیت کا ہے، اور 40 کا عدد بھی کاملیت کا عدد ہے۔ بس آج کے انجیل مقدس میں جب 3 بار پطرس رسول سے سوالات کیے گئے تو اس 3 کو میں بیان کرتا چلوں۔ پاک تثلیث بھی ایک ہوتے ہوئے بھی 3 ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یسوع صلیبی رستہ پہ 3 بار گرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پہ جب آزمائشیں آئیں، جب وہ اعلانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے تو 3 آزمائشیں آتی ہیں۔ خداوند یسوع اپنے مرنے کے بارے میں 3 پیشنگوئیاں کرتا ہے، اور وہ 3 دنوں پر محیط تھی، اور وہ مثال دیتا ہے یونس نبی کی۔ اور یونس نبی کی مثال کیسے ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان ٹھیک ہے وہ زمین کی تہ میں رہے جس طرح یونس نبی رہا۔ اس نے ہیکل سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو وہ تیسرے دن اسے پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان سردار کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے، وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ مسیح خداوند جب ہجوم کے ساتھ تھا، جب اس نے
5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत दी थी और बहुतात से रिज़्क फराहम किया था। 3 दिन से लोग यीशु के साथ थे। इस तरह कलाम अक़दस में हम देखते हैं कि 3 का अदद जो है वो बार बार आता है, बहुत दफ़ा आया, जो कि कामलियत को बयां करता है। और आज की इंजील मुक़द्दस में पतरस रसूल से 3 सवालात पूछे जाते हैं, और वो 3 सवालात कौन से हैं? यानी कि पतरस से उसके नाम से यीशु को मुखातिब होता और कहता है कि ऐ शमौन बरयोना, जो उसका हकीकी नाम था, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो वो जवाब देता है, हाँ ए खुदावंद। फिर दूसरी दफा वही सवाल यीशु से करता है कि ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? वो फिर से वही जवाब देता है। और तीसरी दफा जब यीशु ने उससे पूछा कि ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? तो वो पतरस जो है वो दलगीर होता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। अब यीशु जो है 3 बार उससे इकरार करवाता है, कामिल इकरार करवाता है, मुकम्मल इकरार करवाता है। और जब वो इकरार करता है तो खुदावंद यीशु जो है उसे बरकत देता है। और जब वो इकरार करता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो यीशु अपनी भेड़ों की गल्लाबानी की जिम्मेदारी पतरस रसूल को देता है। पतरस जो यीशु का जानशीन बनता है। और पतरस ने जब ईमान का इकरार किया था तो उसने कहा था कि तू अल मसीह है, तू खुदा की तरफ से। और पतरस की जिंदगी को देखा जाए कि पतरस जो है उसकी मोहब्बत जो थी वो जज्बाती थी, लेकिन यीशु उसको बार बार सिखाता रहा। ये पतरस रसूल ही था कि जो कि पानी में जब डूबता है तो यीशु से कहता है, ए कम इत्काद, मैन ऑफ लिटिल फेथ। ये पतरस रसूल ही था जिसे यीशु ने शैतान कहा। छोटी बात नहीं है, यीशु से कहता है कि शैतान मुझसे दूर हो। और ये पतरस रसूल ही था कि जो कि यीशु के साथ मरने के दावे करता, लेकिन उसे छोड़कर भाग जाता है। बस कलाम अक़दस में बयां है कि पतरस रसूल जब खुदावंद यीशु मसीह की उस पेशन गोई को सुनता है, कि जब यीशु कहता है कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान सरदार काहिनों, फकीरों और फरिश्तियों के हवाले किया जाए और मुझसे मारेंगे, कत्ल करेंगे, तो पतरस कहता है, ऐ खुदावंद तेरे साथ ये कभी ना होने पाए। और यीशु ने उससे कहा था कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। यानी कि यीशु जो है वो फिर बयां करता है कि ये सोच, ये समझ जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि इंसान की तरफ से है। उसके बाद जो है एक और वाकया देखा जाए कि जब मसीह खुदावंद पानी पे चल रहा था, पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। और यीशु ने कहा कि आ। और जब तक वो यीशु को देखता रहा वो पानी पे चलता रहा। जैसे उसकी नजर खुदावंद यीशु से हट गई, उस वक्त वो डूबना शुरू हो गया। फिर यीशु से पहले बचाता है, ठीक है, पहले बचाता है, और फिर उससे कहता है कि ऐ कम इत्कात, सबसे पहले बचाना है, फिर उसे सिखाना है। इसी तरह तीसरा मौका बयां करता चलो कि जब मसीह खुदावंद जो है वो सलीबी मौत के बारे में बताता है, तो वो पतरस जो है वो कहता है कि अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। वही पतरस 3 बार इनकार करता है, फिर मुर्ग बांग देता है। आज की इंजील मुक़द्दस में वही पतरस इकरार करता है जो यीशु का जानशीन बनता है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, ये पतरस ही है जो यीशु के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता है, शहीद होता है। तमाम तरह रसूल जो है शहीद होते हैं सिवाय यूहन्ना रसूल के। और जब ये तमाम रसूल शहीद होते हैं तो कलीसिया में कहा जाता है कि शहीदों के खून से इस कलीसिया की बुनियादों को तर किया गया है। शहीदों के खून से इस कलीसिया की बुनियादों को तर किया गया है। बस आज जब हम खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं, इस कलीसिया की बुनियाद को देखें जो कि यीशु खुद रखता है और रसूलों पे रखता है। आज बड़े अफसोस के साथ देखा जाता है
कि हर गली में, मोहल्ले में छोटे छोटे से गिरजे, ठीक है, गिरजे तो नहीं बल्कि प्रेयर रूम्स बनाए होते हैं, ठीक है। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है? वो बताता है कि इस कलीसिया की बुनियाद यीशु ने खुद 33 ईस्वी में रखी, और आज इस कलीसिया को हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया कहते हैं। इस कलीसिया में बहुत ही ऊंच नीच भी आई है, लेकिन ये कलीसिया आज भी कायम है, क्योंकि यीशु के अल्फाज हैं कि आलम असफल के दरवाजे इस पे कभी गालिब ना आएंगे। बस ऐसी चंद डिनोमिनेशंस, जो कि हकीकत में डिनोमिनेशंस हैं, जिन्हें कलीसिया भी कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं बयान करता चलूं कि उनका आगाज कब हुआ। यहाँ पे किसी को दिक करना नहीं है, तनकीद करना नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि हम सब यीशु में एक हो जाएं, हम सब इत्तेहाद में एक हो जाएं, इत्तेफाक में एक हो जाएं, क्योंकि यीशु ने जिस कलीसिया की बुनियाद रखी वो रसूली कलीसिया है, वो पाक कलीसिया है, जहाँ पे एक खुदा, एक यीशु, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा की बात की जाती है। हर कोई अपने अपने बपतिस्मे की बात ना करे, बराए मेहरबानी। बस चंद कलीसियाओं की बुनियाद के बारे में मैं बयान करता चलूं कि पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद 33 ईस्वी में रखी गई, और रखने वाला कौन है? यीशु मसीह। लूथरन कलीसिया की बात करूं, जो कि 1517 में उसकी बुनियाद रखी गई, और मार्टिन लूथर ने उसकी बुनियाद रखी, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च भी कहते हैं। एंग्लिकन कलीसिया की बात करें, जिसकी बुनियाद जो है वो 1534 में हेनरी हस्टम ने रखी, और कैल्विन कलीसिया की बात करें, जिसकी बुनियाद 1555 में जॉन कैल्विन ने रखी। प्रेस्बिटेरियन चर्च की बात करें, जिसकी बुनियाद 1560 में जॉन नॉक्स ने रखी, और कांग्रीगेशनल चर्चिस की बात करें, जिसकी बुनियाद 1586 में रॉबर्ट ब्राउन ने रखी, और बैप्टिस्ट चर्च की बात करें, जिसकी बुनियाद 1609 में जॉन स्मिथ ने रखी। इसी तरह और भी छोटे छोटे डिनोमिनेशंस जो हैं, जो कि हमारे लिए तकसीम का बायस बनती है। बराए मेहरबानी, एक ही कलीसिया में ईमान रखते हुए यीशु को पहचाने, खुदा को जाने। यीशु हमें तकसीम नहीं करता। हम सबको चाहिए कि एक रसूली कलीसिया जिसकी बुनियाद यीशु रखता है, एक ही ईमान का प्रचार करें, एक ही खुदा का प्रचार करें, और एक ही यीशु पे ईमान रखते हुए, एक ईमान का इकरार करते हुए एक ही बपतिस्मा में जिंदगी गुजारें। और जब यीशु आज के इंजील मुकद्दस में पतरस से पूछता है कि क्या तू मुझे प्यार करता है, तो आज हमारा जवाब क्या है कि जब यीशु मुझसे पूछता है कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है, या अपनी अनापरस्ती को, या अपनी दौलत को, या अपने घमंड को, या अपने लालच को, या अपनी जिंदगी की आदत को। आज खुदावंद यीशु मुझे भी पूछता है कि मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आए बड़े ईमान के साथ खुदावंद की बरकतों को देखें कि जब यीशु उनसे कहता है कि जाल को दाहिनी तरफ डालो, तो यीशु बरकत देता है, रिज़्क की बहुतात देता है। जहाँ भी यीशु है वहाँ पे रिज़्क की बहुतात है, वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे शादाबी है, वहाँ पे सरखेसी है। और जब रिज़्क पे बरकत है, तो इलियास नबी भी जब सारफत की बेवा के पास जाता है, तो वो क्या कहता है कि इस घर की मट्टी से कभी आटा कम ना होगा, इस घर की तेल की कुप्पी से कभी तेल कम ना होगा। और वो सारफत की बेवा के घराने को बरकत देता है। ये खुदा का चुनिंदा नबी जो है बरकत देता है। यीशु जब खुद रसूलों के साथ होता है, तो उनकी मेहनत जितनी भी उन्होंने की थी, यीशु उस मेहनत को बरकत दे देता है। उन्होंने सारी रात जाल डाला, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन जब यीशु की मौजूदगी हो जाती है, खुदावंद की मौजूदगी हो जाती है, तो बरकतें और रहमतें नासिल होती हैं। आए आज के कलामी अक़दस से हम भी देखें कि हम हर रोज़ जब तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, अपनी ज़िंदगी में
खुदा की बरकतों को देखें, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु की मोहब्बत को देखें कि वो जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, अपने हाथों में सलीबी निशान लिए हुए जब मेरे पास आता है, अपनी पसली को दिखाता है, अपने छलनी जख्म को दिखाता है, बदन को दिखाता है, यीशु को पहचाने, जाने और अपनी एक ज़िंदगी में उसकी मोहब्बत का जवाब दें। खुदावंद आज के कलाम इलाही से हमें अपनी बरकतों पर फसाइल से नवाजे, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।